محترم، جیسا کہ ہم اور آپ محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ فاتحہ کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے یہی کہ سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہو، سچی محبت ہو، عقیدت ہو، اور جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان تمام لوگوں سے سچی محبت ہو۔ اور سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان بزرگوں کے راستے پر چلو، امام حسین کے راستے پر چلو، بزرگوں کے راستے پر چلو، کیونکہ ان کا راستہ اسلام ہے۔ جب اسلام ہے تو اگر سچی محبت ہے تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو، نماز ادا کرو، رمضان المبارک کا روزہ رکھو، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کرو۔ یہ ان بزرگوں کا راستہ ہے، نہ کہ جوا بازی، تاش بازی، چغل خوری، غیبت، تماشا، فلمی گانے اور پکچر، ان تمام خرافات سے بچو، ان تمام خرافات سے بچو، کیونکہ یہ دین کا راستہ نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا راستہ نہیں ہے، یہ امام حسین کا راستہ نہیں ہے، بلکہ امام حسین کا راستہ تو وہ راستہ ہے کہ آخری وقت میں بھی اپنے نماز کو قضا نہ ہونے دیے۔ تو اگر تم بزرگوں سے سچی محبت کرتے ہو تو ان بزرگوں کے راستے پر چلو۔ اور سنو، آج ہمارا حال کیا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ امام حسین اور ان کے ساتھی جو شہید ہو گئے ان کے نام پر فاتحہ کرو، اور چاہے وہ کھچڑا ہو، چاہے ملیدہ ہو، چاہے شربت ہو، یاد رکھیں ہر وہ چیز جو حلال ہے، جو کھائی جاتی ہے، جو چیزیں پی جاتی ہے، ان تمام چیزوں کی فاتحہ جائز ہے، تمام چیزوں کی فاتحہ جائز ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے، کیونکہ ایسا اس طرح اکثر ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دن صرف کھچڑا ہی ہونا چاہیے، آج کے دن صرف ملیدہ ہی ہونا چاہیے، آج کے دن صرف شربت ہی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہے، پی جاتی ہے، وہ حلال چیز ہے، اس کی فاتحہ جائز ہے۔ اگر کوئی ایک چیز کو انتخاب کر لے، منتخب کر لے، تو وہ جاہلانہ ہے، اس کی جہالت ہے، اس کی جہالت ہے۔ اور یاد رکھو، ہم اور آپ جو فاتحہ کرتے ہیں، یہ فاتحہ کرنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فاتحہ نہ کرے تو وہ گنہگار نہیں ہے، وہ شخص گنہگار نہیں ہے، لیکن اگر وہ بالکل فاتحہ کرتا ہی نہیں ہے تو اس کی محرومی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر کوئی شخص فاتحہ سے روکے، اگر کوئی شخص فاتحہ کرنے سے منع کرے، تب وہ شخص گمراہ ہے، وہ بد مذہب ہے۔ لیکن یاد رکھو، فاتحہ کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر فاتحہ نہیں کریں گے
آپ गुनहगार तो नहीं होंगे, लेकिन याद रखो मुसलमानों, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। और हमारा हाल क्या है कि हम और आप करते क्या है कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास मालो दौलत नहीं है, तो हम कर्ज लेकर के फातिहा करते हैं। ऐ मुसलमानों, याद रखो, जो मालिक निसाब होता है उस पर ज़कात फर्ज होती है, जो मालिक निसाब होता है उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन फातिहा ना वाजिब है ना फर्ज है, तो अब कर्ज लेने की जरूरत क्या है? अब चाहते हो कि हमें भी फातिहा करनी चाहिए, तो उसका तरीका ये है कि कुरान पाक की तिलावत करो, कलमा शरीफ का विर्द करो, दुरूद पाक कसरत से पढ़ो। इससे बड़ी फातिहा और क्या हो सकती है? इससे बड़ी फातिहा और क्या हो सकती है? और जो कर्ज लेते हैं अपने बच्चों पर तंग दस्ती करते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, बीवी बच्चे परेशान होते हैं। एक तो घर में खाने के लिए खाने का सामान नहीं है, दूसरे में कर्ज लेकर के हम फातिहा करते हैं। फातिहा करना ये फर्ज और वाजिब नहीं है। फातिहा हम इसलिए करते हैं, बुजुर्गों की याद को ताज़ा करते हैं, बुजुर्गों की यादें मनाते हैं। तो उसकी यादों को मनाने के लिए आप कुरान पाक की तिलावत करें, आप कलमा शरीफ का विर्द करें, और इन तमाम चीजों का सवाब अपने वलियों के नाम पर, अपने घर के बूढ़ों और बुजुर्गों के नाम पे इसाले सवाब आप करते रहें। यकीनन ये सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन फातिहा है। आज हम और आप मुहर्रमुल हराम में क्या करते हैं? ताजिया बनाते हैं, ताजियादारी करते हैं। ऐ मुसलमानों, याद रखो, आज जो ताजिया बनाए जाते हैं, ये तरह तरह के ताजिए बनाए जाते हैं जिसमें तस्वीरें लगी होती है। ये इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोजा, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे का सही नक्शा नहीं है, और उससे फिर घुमाया जाता है, उसे गश्त कराया जाता है। याद रखो मुसलमानों, ये तमाम के तमाम चीजें नाजायज व हराम है, तमाम के तमाम चीजें नाजायज व हराम है। और हम क्या करते हैं? ताजिया तो बनाते हैं, इमाम बाड़े पे रखते हैं, और कुछ लोगों पे ऐसा भी होता है, लोग पंजे को भी रखते हैं। दो, चाहे वो ताजिया हो चाहे वो पंजा हो, कहते हैं बीवी फातिमा का पंजा है। ऐ मुसलमानों, याद रखो, ताजिया हम बना करके रखते हैं, वहां पे खाना चढ़ाते हैं, वहां पे फातिहा पढ़ते हैं, वहां पे खाना चढ़ाते हैं और मन्नतें मानते हैं। ऐ मुसलमानों, याद रखो, वहां पे जो फातिहा पढ़ते हैं, जो खाना चढ़ाते हैं, वो तमाम के तमाम चीजें नाजायज है, ये बेबुनियाद है, ये तमाम के तमाम चीजें नाजायज है। इसलिए कि इमाम हुसैन, और हम ये चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम इमाम हुसैन के नाम पर फातिहा करते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर हम फातिहा करते हैं। बेशक इमाम हुसैन के नाम पर फातिहा कीजिए, मगर उन चीज़ों से बचें। ये तमाम के तमाम खुराफात हैं। वहाँ पे जो ताजिया बनाते हैं, जो खाना चढ़ाया जाता है, उस जगह पे हम फातिहा पढ़ते हैं। वो खाना, वहाँ पे फातिहा पढ़ना, चाहे वहाँ पे पंजा हो चाहे वहाँ पे ताजिया हो, इन तमाम जगहों के खाना को नाजायज करार दिया गया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी ये हैं, वो सोचते हैं कि जब हम मातम करते हैं तो वो सोचते हैं इससे हमारी शान जाहिर होती है। ऐ मुसलमानों, याद रखो, मातम करने से, ताजिया बनाने से, ताजिया को झुककर सलाम करने से मुसलमानों की शान जाहिर नहीं होती है, बल्कि ये तमाम के तमाम फजूल है, ये तमाम के तमाम बेबुनियाद है, ये तमाम के तमाम नाजायज है। अरे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो मुसलमानों की शान जाहिर हो, तो इससे बड़ी और क्या हो सकती है? मस्जिद, मोहल्ले की मस्जिद में पहुंच जाओ, 5 वक्त नमाज अदा कर लो, ईद की नमाज जमात से पढ़ लो,
जुमे की नमाज पढ़ लो, इससे मुसलमानों की शान जाहिर होती है, ना कि ढोल बजाने से, ना कि ताजिया बनाने से, ना कि तमाशा करने से मुसलमानों की शान तो जाहिर नहीं होती है, बल्कि मुसलमानों की बर्बादी होती है। इसलिए याद रखो मुसलमानों, जो इमाम बाड़ा बनाते हैं इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। वहां पे लोग मन्नतें मानते हैं, वहां पे लोग खाना चढ़ाते हैं। इन तमाम खानों को, ये तमाम के तमाम खाने नाजायज है। और याद रखो मुसलमानों, कुछ